Hello everyone, how are you all? I hope all of you are fine and doing well. Before starting exercise 8.4, let us revise all the identities we have studied in this chapter, and we will use all these identities in this exercise 8.4. I have explained all these values in our previous exercise 8.3, and today we will use these identities also in exercise 8.4. These are sin square theta plus cos square theta is 1, जिसमें से sin square theta अगर हमें निकालना है that will be 1 minus cos square theta. अगर हमें cos square theta निकालना है that will be 1 minus sin square theta. Here secant square theta minus tan square theta is 1. This is second identity. This is secant square theta अगर हमें find करना है then this will be 1 plus tan square theta. This will shift to that side. अगर हमें tan square theta निकालना है that will be secant square theta minus 1 equal to tan square theta. Here also cosecant square theta minus cot square theta is 1 and cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. अगर हमें cot square theta find करना है that will be cosecant square theta minus 1 is equal to cot square theta. ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा and this 1 will come to this side with negative sign. Okay, so these identities we will use in exercise 8.4. So let us start our exercise 8.4 with first question. Express the trigonometric ratio sin A, tan A and secant A in terms of cot A. First of all, we can check tan A is already the reciprocal of cot A. So we will tan A तो हो गया cot A में. तो हमें नेक्स्ट करना है secant A. secant A की tan A के साथ आइडेंटिटी है तो सीधी वैल्यू पुट हो जाएगी यहाँ पे. सो secant A वाली आइडेंटिटी लिखेंगे हम. secant A स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A. सो tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल कर दीजिए यहाँ पे. दिस इज कोट में लिख दीजिए इसको. सो दिस इज 1 प्लस कोट स्क्वायर A. दिस इज 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर A. दिस इज 1 प्लस कोट स्क्वायर A बाय कोट स्क्वायर A. इसका एलसीएम लेंगे हम. दिस इज कोट स्क्वायर A प्लस 1 बनेगा यहाँ पे. सो दिस इज secant स्क्वायर A. वी हैव टू फाइंड secant A. सो वी विल टेक हियर स्क्वायर रूट. दिस इज इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ये, और नीचे कोट स्क्वायर A है तो उसका स्क्वायर रूट आएगा कोट A. स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये हो गया secant A का भी, tan A का भी. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली sin A. अब sin A वाली एक ही आइडेंटिटी होती है ये वाली, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. सो sin स्क्वायर A इज दिस. सो हम secant A का निकल गया ना हमारा, तो हम cos स्क्वायर A को secant में कन्वर्ट कर देंगे लाइक दिस. सो हम यहाँ पे secant स्क्वायर A की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट. सो दिस इज 1 माइनस ये 1 बाय secant स्क्वायर A है तो हम इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे हम यहाँ पे. सो दिस इज 1 प्लस कोट स्क्वायर A. नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ दिस टर्म. दिस इज 1 बाय 1. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज 1 प्लस कोट स्क्वायर A minus cot square A by 1 plus cot square A, which is equal to 1 by 1 plus cot square A. So we have to find sin A. So we will take here square root of this term. This is 1 plus cot square A. So ये हमारा आ गया secant A in terms of cot A, tan A in terms of cot A and sin A in terms of cot A. So this was our first question. So let's do our second question, which is write all the trigonometric ratios of angle A in terms of secant A. हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियोज हैं जो भी tan A, cos A, sin A, secant A, secant A में तो कन्वर्ट करना है हमें. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर cos तो डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल है तो cos A हो गया हमारा 1 बाय sin A, secant A. cos A is reciprocal of secant A. So this is 1 by secant A. अगेन लिख देती हूँ, कटिंग हो गई. सो लेट अस डू sin नाउ. सो sin के लिए हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे. दिस इज सो पुट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A इज 1 बाय secant स्क्वायर A. So which is equal to secant square A minus 1 by secant square A. LCM लिया यहाँ पे.
So now we have to find sine A. Here sine square A है, then we will take square root of this term. So sine A is equal to secant square A plus 1 का square root y secant A. So साइन का भी हो गया हमारा. So अभी हम tan का करेंगे. tan के लिए हमें आइडेंटिटी है secant square A इज इक्वल टू, लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस tan square A इज इक्वल टू 1. वी हैव टू फाइंड tan, सो वी विल टेक tan टू दिस. ये आ गया secant square A माइनस 1. इज दिस राइट? tan उधर चला गया, secant 1 इधर आ गया, सो tan पॉजिटिव आ गया. सो दिस इज किस में करना है? secant में ही करना है. सो वी विल टेक हियर स्क्वायर रूट. हमें वी हैव टू फाइंड tan A. सो tan A का हमने ये कर दिया स्क्वायर रूट -1. ये आ गया tan A in terms of secant A. ओके, नाउ विच इज लेफ्ट? कोसाइन tan. कोट का करेंगे, कोट का इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा डायरेक्ट. कोट A इज इक्वल टू, सेम आइडेंटिटी हमने यूज की, tan की वैल्यू आ गई. टेक द रेसिप्रोकल ऑफ tan विच इज इक्वल टू, tan की वैल्यू हमने निकाली है secant में, secant square A minus 1. This is the value of tan in terms of secant, so we can use direct here this term. So ये हो गया कोट का भी हमारा. Now we will use cosecant. cosecant का करना है, हमने साइन का फाइंड किया है. टेक द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. सो दिस इज cosecant A इज इक्वल टू 1 by sin A which is equal to secant A by secant square A minus 1. So these are all trigonometric ratios of angle A in terms of secant A आ गया हमारा. So let's do our third question, which is we have to evaluate sine square 63 plus sine square 27 by cos square 17 degree plus cos square 73 degree. We have to find its value. First of all, we have to check whether sum of these angles add up to 90 or not. This is sin 3 plus 7 10, 6 plus 2 8 9 हो गया 90. नीचे वाले का सम भी 90 एंगल्स का. सो वी विल यूज हियर फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा. सो अगर sin स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर लगा देंगे, सेम लग जाएगा. दिस इज sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा. थीटा हम सेम यूज करेंगे ये वाला, प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री. एक को चेंज कर देंगे, एक हम सेम रखेंगे. ओके, सो हियर ऑल्सो नीचे भी cos 17 is sin 90 minus theta. So this is sin 90 minus theta is 70 degree. 17 plus cos square 73, ये सेम रहेगा. ओके, सो दिस इज cos स्क्वायर, इसको माइनस कर दीजिए अंदर. 90 minus 63 is 27 degree plus sin square 27 degree by sin square 19 minus 17 is 73 plus cos square 73 degree. So you can check, this is cos square A plus sin square A. Angle same है दोनों का, so we can use the identity sin square A plus cos square A is equal to 1. So here also sin square A plus cos square A is equal to 1. So answer is 1. So our second part is sin 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree and sin 65 degree. Here also sum of angles is 90 degree, so we will use the same identity here. Sin 25 is cos sin theta is equal to cos 90 minus theta. कुछ नहीं किया है हमें, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है. एंगल इज सेम. sin थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा. सो दिस इज एक टर्म सेम रखेंगे, एक को हमने चेंज कर दिया. सो cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा इंटू sin 65 डिग्री. सो दिस इज cos ऑफ, माइनस करेंगे, दैट इज 65, 90 माइनस 25. This is 65 plus sin कितना आया ये? This is again 65 and sin 65. So you can check, this is cos 65, cos 65. So we can write cos square 65 degree plus sin 65, sin 65, sin square 65 degree.
So here angles are same, cos square theta plus sin square theta. Theta same है ना दोनों में, so we can use this identity. So its answer is also 1. So let's do our fourth question, which are multiple choice questions हैं. Choose the right option है. Choose the right option. We have to solve the question and answers are given. 9 secant square theta minus 9 tan square theta. इसकी वैल्यूज जो हैं दैट आर, फर्स्ट इज, यहाँ लिख देती हूँ ऐसे, a is 1, b is 9 and c is 8, d is 0. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 1 आती है, 9 आती है, 8 या फिर 0 आती है. सो लेट अस सॉल्व दिस. दिस इज secant square a थीटा एंड tan square थीटा. इनकी आइडेंटिटी है ना दोनों वाली. सो वी विल पुट हियर secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. Is this right? So this is, open the brackets, plus 9 tan square theta minus 9 tan square theta. So 9 tan square theta same है opposite sign के साथ. So we can cut this. So answer is 9. So our right answer is B part. This is 9. So let's move to second part, which is 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta. Options are given. किसके इक्वल होता है ये? 0, 1, 2 या -1 के इक्वल होता है. So let us solve this. So first of all इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा. tan theta is sin theta by cos theta. Secant theta is 1 by cos theta and 1 plus cot theta is cos by sin minus cosec is 1 by sin theta. So now take LCM. पहले हम इसका LCM लेंगे. दिस इज cos theta. So this is, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. दिस इज cos theta plus sin theta plus 1 and this is LCM is sin theta. So here will be sin theta plus cos theta and minus of 1. यही आएगा ना एलसीएम लेके. इसका एलसीएम लिया तो ये टर्म आ गई, इसका लिया तो ये टर्म आ गई. नाउ लेट अस, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स डाउन. ओके, सो चेक. दिस इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा ना. दिस इज ऑल्सो साइन थीटा प्लस कोस थीटा. इसको लिख सकते हैं ना साइन थीटा प्लस कोस थीटा. बोथ है पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कोस थीटा. सो दिस इज, इसको हम ए मान लेंगे पूरे को एंड दिस इज बी. दिस इज ए, दिस इज बी. सो यू कैन चेक. दिस इज द आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. किसके इक्वल होती है ये? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. हेयर ए इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा. सो राइट ए स्क्वेयर. ए स्क्वेयर मीन्स ए पूरा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस बी स्क्वेयर. बी स्क्वेयर इज 1 का स्क्वेयर इज 1. सो नीचे आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा. सो हम इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे. ए प्लस बी होल स्क्वेयर बन गया ये. दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 बी माइनस 1 का स्क्वेयर 1 आ गया. ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बन गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि जो हमारा ए था इसमें जो ए है, दिस इज ए प्लस बी. यहाँ पे ए जो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और बी जो है वो 1 है दोनों में. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब जो ए स्क्वायर है वो ये बना इन दोनों का होल स्क्वायर. तो हम उसको ओपन करेंगे यहाँ होल स्क्वायर को. सो डिनोमिनेटर इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा. सो इनको ऐड करेंगे. दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज 1. दिस इज 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा. तो ये 1 कैंसिल हो गया हमारा. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 इंटू साइन थीटा cos theta by sin theta into cos theta. तो ये टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं. So we are left with only 2. So our right option is this C part 2. So let's move to our third part, which is secant A plus tan A into 1 minus sin A. हमें ये बताना है ये किसके इक्वल होता है. secant A के इक्वल होता है, साइन ए के इक्वल होता है, या फिर कोसेक ए के इक्वल होता है, या फिर कोज ए के इक्वल होता है. ये इसकी 4 ऑप्शंस है. इनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करनी है. ये किसके इक्वल होगा. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. कोस सेक इज 1 बाय कोस
plus tan is sin by cos. Okay, so this is 1 minus sin A. So this is, check, LCM लेंगे इसका, LCM आएगा हमारा cos A, देखो ऊपर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, sin A into 1 minus sin A. So check this is A plus B into A minus B, 1 plus sin A, 1 minus sin A. So ये आइडेंटिटी फिर से बन गई A square minus B square वाली. So we can write A square is 1 का square 1 minus B square is sin square. So this is cos A. So we can write 1 minus sin square A is cos square A by cos A. Cos square A is cos A into cos A. एक cos A नीचे कट जाएगा, so we are left with only one cos A. So our right option is D. This is okay. So let's move to our fourth part. So you can check how easy these questions are if you know all the values, all the identities, all the transformations. So our fourth part is 1 plus tan square A 1 plus cot square A. ये किसके इक्वल होता है ये हमें बताना है. ऑप्शंस है हमारी secant square A -1 cot square A और tan square A. ये इसके चार ऑप्शंस हैं. We have to simplify this. This is 1 plus tan square A is sin square A by cos square A by 1 plus cot is cos square A by sin square A. So LCM लेंगे ऊपर वाले का अलग से. So ऊपर बन गया ये sin square A plus cos square A by cos square A. ऐसे ही बनेगा ना, ये cos square A plus sin square A, उसको हमने लिख दिया sin square A plus cos square A बाय, ये भी ऐसे ही बनेगा सेम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए. सो दिस इज, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये बना 1 बाय कोस स्क्वायर ए. इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ना, दिस इज 1 बाय साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, उसको हमने लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर ए. सो ये नीचे वाला आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1. सो दिस इज साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए इज tan square A. So this is our right option D. So let's start our question number 5. Its first part, prove करने वाले questions है. We have to prove these questions. Cosecant theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta by 1 plus of cos theta. We have to take here left hand side and we have to prove this is equal to the right hand side. ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. सो वी विल कन्वर्ट दिस, ये साइन कोस में है ना, टर्म कोस में है, सो वी विल कन्वर्ट दिस टर्म्स ऑल्सो इन साइन एंड कोस. सो कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड कोट इज कोस बाय साइन. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम इसका होल स्क्वायर लेंगे. दिस इज साइन थीटा, एलसीएम आ गया इसका, एलसीएम दोनों का सेम है. सो दिस इज 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर. सो दिस इज, ऊपर वाले का अलग से होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का भी स्क्वायर हो गया. ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम्स. सो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ऊपर वाला कोस में है तो हम इसको भी कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम वैसे लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हम डिनोमिनेटर को भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके लिख लेंगे. दिस इज ए प्लस बी इज कोस थीटा ए माइनस बी. ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड. सो अवर सेकेंड पार्ट इज, these are so easy questions if you know the identities. अगर आपको रेसिप्रोकल्स पता है, सारी आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं, then you can solve these questions in just seconds. चुटकियों में कर सकते हैं आप ये questions. So our second part is cos of A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos of A is equal to 2 of secant A. 2 sec A के इक्वल प्रूव करना है हमें इसको. सो वी विल टेक अवर लेफ्ट हैंड साइड. सो कोस ए, इनका एलसीएम ले सकते हैं हम डायरेक्ट. दिस इज 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए.
इनमें कुछ भी हमें ट्रांसफॉर्म करने वाला नहीं है, कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए नहीं है। साइन कोस में दिए हैं टर्म्स, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज कोस स्क्वायर ए प्लस, इधर करेंगे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा ना 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इट मीन्स दिस इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। सो लेट अस सॉल्व दिस नाउ। इस पे हम होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। दिस इज कोस स्क्वायर ए, ये अलग से है, प्लस ए स्क्वायर इज 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये आ गया 2 साइन ए। ए इज 1, बी इज साइन ए। सो नीचे वाला सेम रहेगा हमारा 1 प्लस साइन ए। सो यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो 1 बन जाएगा, और 1 ये वाला, दिस इज 1 प्लस 2 साइन ए बाय कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। दिस इज 2 प्लस 2 साइन ए बाय कोस ए इंटू 1 प्लस साइन a. So this is 2 common out. This is cos a by 1 plus sin a. 1 plus sin a, 1 plus sin a cancel हो सकता है यहाँ पे. So we are left with 2 by cos a. So cos a, 1 by cos a is equal to secant a. So this is 2 into secant a. So which is equal to our right hand side. And our next question is tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta. Secant theta into cosecant theta है. So we will take its left hand side. So our left hand side is equal to tan theta को हम लिख सकते हैं, ये देखो इधर, अब इधर है secant theta और cosecant theta, मतलब ये साइन कोस में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी इसी फॉर्म में है. सो वी कैन राइट tan थीटा इज साइन बाय कोस एंड 1 माइनस बाय है 1 माइनस कोट थीटा. सो कोट थीटा इज 1 माइनस कोस बाय साइन प्लस हियर कोट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा. कोट थीटा इज कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा बाय cos theta. So here we will take the LCM of their denominators. Okay, separately हमें इनका LCM लेना है. So ये आ गया equal to sin theta by cos theta by LCM लेंगे. LCM is sin theta here. So this is sin theta minus cos theta plus अब ये वाला है cos theta by sin theta divided by this is cos theta minus sin theta. Cos theta by minus sin theta, LCM इनका है cos theta. Okay, so we will simplify this now. So this is ये डिवाइड बाय जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. मीन्स दिस इज साइन थीटा बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा. सो वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया, प्लस हेयर कोस थीटा इंटू बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये वाली ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो दिस इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा. सो यू कैन सिंप्लीफाई दिस नाउ. नेक्स्ट अगेन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा by cos theta into sin theta minus cos of theta and here sin मैं बताती हूँ अभी आपको नेक्स्ट क्या आएगा. दिस इज cos स्क्वायर थीटा बाय दिस इज sin थीटा. अब देखिए ये ब्रैकेट वाली, अब हमें इनका एलसीएम लेना है ना, ये नेक्स्ट टू टर्म्स का प्लस साइन है बीच में, ठीक है ना, और कुछ भी कट होने वाला इनमें नहीं है अभी तक. सो इनका एलसीएम लेने के लिए देखो यहाँ पे कोस थीटा है साइन थीटा है, तो नेक्स्ट टर्म में एलसीएम में साइन थीटा कोस थीटा तो आ ही जाएगा. अब ये देखो ब्रैकेट वाली टर्म जरा, दिस इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड दिस इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा. टर्म्स दोनों सेम है, बट नेगेटिव साइन का डिफरेंस है ना. अगर हम a माइनस बी है और इधर b माइनस a है, तो अगर हमने उनका एलसीएम लेके उनको सेम टर्म बनाना है तो हम यहाँ पे इसको माइनस कॉमन लेके a माइनस बी लिख सकते हैं ना. So this is minus a
ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस का b आएगा और माइनस का a आएगा. सो वी कैन राइट ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम माइनस कॉमन निकाल के. सो वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स हियर एंड दिस नेगेटिव साइन विल कम हियर. जो हमने कॉमन साइन निकाला है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. सो दिस इज वी कैन राइट साइन थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा. इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल टेक द एलसीएम. नाउ अब एलसीएम लेना इजी हो गया ना. ये देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू ये टर्म हम एक ही बार लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा. दोनों में कॉमन है. सो वी विल राइट वंस हियर. सो अब देखो अब देखिए इधर डिनोमिनेटर को इसको इससे डिवाइड करना ना. वी हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस डिनोमिनेटर. सो अब देखो कौन कौन सी टर्म्स कटेंगे जब डिवाइड करेंगे. तो कोस थीटा इसमें भी है, इसमें भी है. साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा. सो वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा. ठीक है. साइन थीटा क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. यही रूल है ना एलसीएम लेने का. पहले हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को उनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. जो क्वोशिएंट आता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कट जाएंगे. कोस थीटा बचेगा ओनली. कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया हमारा. नाउ यू कैन सी दिस इज आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब. If you remember this identity, this is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. All of you know na? This identity we will use it here. Okay, so this is a, this is b. So this is a minus b cos theta into a square plus b square plus ab sin theta into cos theta. Okay, so denominator is sin theta cos theta into sin theta minus of cos theta. Okay, clear आ गया ये. So this is sin theta minus cos theta. ये देखिए मैं नेक्स्ट टर्म में काट देती हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा सा. वेरी इजी. दिस इज sin theta plus cos square theta is 1 sin square theta plus cos square theta प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोज ऑफ थीटा. ये वाली टर्म बन गई, ये शॉर्ट हो गई है ना ये. दिस इज साइन थीटा इंटू कोज थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोज थीटा. तो ये टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म साथ में. सो वी कैन कैंसिल दीज टर्म्स. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोज थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा. नाउ वी कैन सेपरेट दीज टर्म्स. अगर हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा ऐसे. सो वी विल राइट हियर 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा. सो ये टर्म कैंसिल हो गई तो यहाँ पे आ गया 1. सो वी विल राइट दिस 1 हियर 1 प्लस ये देखो क्या आ गया 1 बाय साइन इज कोसेक थीटा एंड 1 बाय कोस इज sec theta. So which is our right hand side? You can check. This is 1 plus secant theta plus cosecant theta. So ये आ गया. So इसको इधर इधर जैसे मर्जी लिख सकते हैं. So this is our right hand side. So these are the questions. Next questions we will do in our next video. So thank you so much for watching. Stay home, stay safe.